Now open your next page. Sources of water. Water is present not only on the surface of earth but also beneath its surface. पानी ना सिर्फ सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद है बल्कि वो ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है. Surface water. About 97% of Earth's surface water is found in the ocean. 97% जो पानी है ज़मीन का वो समुद्रों में पाया जाता है. It is salty water. ये पानी नमकीन होता है. Only 3% of water is fresh water. सिर्फ 3% जो पानी है वो fresh water है which is present on the surface of earth जो ज़मीन पर मौजूद है. Only 3% water is fresh water which is present on the surface of earth. In the air, water vapors and under the ground जो पानी है वो हवा में वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है, भाप की सूरत में, और ज़मीन के नीचे मौजूद है. ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेज एंड सॉल्ट इन प्योर वाटर. द मेजर डिजॉल्व गैसेज इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द मेजर डिजॉल्व सॉल्ट्स are sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate, etc. Sodium chloride is the most abundant salt in ocean water. Ocean water unusable for drinking because of salt. Some countries like Saudi Arabia, Kuwait remove salt from the ocean water to make it drinkable. फ्रेश वाटर. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न. जो फ्रेश वाटर है फ्रोज़न यानी बर्फ़ की फॉर्म में है. द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स. दिस आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. ये जो आइस शीट्स हैं हमारे पास ये क्या कहलाती हैं? ग्लेशियर्स. फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम, river, lakes and ponds. At some places where ground is low, the water stay for part of the year and makes the ground very wet. Such places are called wetlands. Pugre, Kurm, Kraki are a few wetlands in Sindh province. The water in wetlands move down into the soil and become groundwater. Water beneath the surface of earth. सतह ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है. Recall what happened to rain when it falls. Rainwater can evaporate, run off the surface, or soak into the ground. The water that soaks into the ground is called the groundwater. The top level of groundwater in an aquifer is the water table. The level of water table changes during the year. It rises when water is added by rain. It becomes lower when there is a drought. People dig well to bring groundwater to the surface. Impurities of water. We need clean drinking water. हमें पानी पीने से पहले साफ कर लेना चाहिए. Our water resources are becoming unfit due to presence of impurities in water. जो हमारे पानी के ज़राए हैं वो unfit है, कम है, क्योंकि impurities मतलब impurities in water जो पानी के अंदर नापायदार मादे पाए जा रहे हैं उसकी वजह से. वाटर में हैव जर्म्स. पानी में जर्म्स मौजूद होते हैं. इट में आल्सो हैव सॉल्ट, डर्ट और अदर केमिकल्स इन इट. इसमें नमकियात भी हैं, डर्ट गंदगी भी है और अदर केमिकल्स भी हैं. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. हार्मफुल, नुकसानदेह एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. We can classify water pollutants into different groups. हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में. बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज causing pollutants. Acid, salts are water soluble pollutants. These pollutants can increase the growth of algae in the water. The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. Plants cannot make their own food and die. As a result, fish and other aquatic animals also die. इसका मतलब ये है कि जब पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है तो एसिड रेन जो है वो सॉल्ट कंटेन करती है. जब ये पानी समुद्र में जाता है तो ये जो फिशेस हैं हमारे पास उनके लिए हार्मफुल साबित होता है. जब उस पानी को वो ड्रिंक करते हैं तो इससे उनकी डेथ हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो डाई. इसके नतीजे में वो मर जाते हैं. Oil, plastic and pesticides are also harmful to all plants and animals in the water. Sources of water pollution. Here are some major sources of water pollution.
Human wastage, people release sewage into drains which carry it to rivers. Sewage from houses contain fat, toilet wastage, food particles, detergent, harmful bacteria, etc. This human wastage not only cause diseases in human beings and also destroy aquatic life. ह्यूमन वेस्टेज जो इंसान है, जो वेस्टेज हैं, हम लोग जो पानी में कचरा डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो डिजीज़ काज होंगी वो भी क्या करेंगी, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगी. इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो इंडस्ट्री से वेस्टेज जाता है, इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक मतलब जहरीले केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स. Smoke and toxic gases released from industries also cause the rainwater to become acid rain. These chemicals can kill fish and other aquatic animals and plants. Now open the next page. Our topic is fertilizer. Farmer use fertilizer and pesticide in the crops. जो किसान हैं वो फसलों में इस्तेमाल करते हैं इनका. The rainwater carries these chemicals to water resources and cause water pollution. These polluted water is fit for aquatic plant and animals. ये जो आलूदा पानी है ये अनफिट है aquatic है plants and animals के लिए. Different ways to clean water. पानी को साफ़ करने के तरीके. Water may have germs, dirt, salt and other things dissolved in it. All of these things must be removed before drinking the water. The process of removing impurities from water is called purification of water. We can use following method to purify water. हम इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके पानी को साफ़ कर सकते हैं. By filtration. In laboratory we can purify water by this method on small scale. Impure water is passed through a filter paper. जो हमारे पास गंदा पानी होगा उसको हम इस फिल्टर पेपर से पास करेंगे. जो हमारे पास और जो पानी है वो फनल के ज़रिए नीचे आ जाएगा बीकर में, और जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर के साथ अटैच हो जाएंगे. Impure water is passed through a filter paper. Suspended particle and insoluble salt are left on the filter paper where clear water is obtained in the beaker. To remove dissolved substances present in the water, special membranes can be used. These membranes have microscopic pores to separate dissolved substances from the water. सेकेंड हमारे पास मेथड है बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर. ये एक महफूज तरीका है पानी को साफ़ करने का. इन विलेजेस, देहातों में, पीपल कैन ईजीली यूज़ दिस मेथड टू प्योरीफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर. लोग इस तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए. बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 30 minutes. द वाटर इज़ कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग. पानी को 15 से 30 मिनट तक उबाइल किया जाता है और उसके बाद उसको साफ़ करके ठंडा करके पिया जा सकता है. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज. थर्ड मेथड इज़ बाय क्लोरीनेशन. इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आप बॉयल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर. हम एक हाउस होल्ड लिक्विड ब्लीच को पानी में डालते हैं. ब्लीच कंटेन क्लोरीन, जिसमें क्लोरीन मौजूद होती है. फॉर दिस पर्पज़ प्लेस द वाटर इन द क्लीन कंटेनर. एड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लीच और अ क्लोरीन टू मेक इट प्योर. उस ब्लीच के ज़रिए हम पानी को क्लीन कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ पोटेशियम. वी कैन ऐड पोटेशियम to the water to purify it. Sand, clay and other suspended impurities of water will settle down. Water will be pure after decantation. Next one is distillation. We get clear tap water, but it is not pure. It may contain small salt and bacteria in it. We can use the process of distillation to separate impurities from water. In simple distillation, the water is heated to convert into steam. The steam is cooled down into distilled water. Impure water is boiled in a closed container flask. Water vapors form the surface of boiling water pass through a pipe into a vessel called a condenser. The condenser is a tube surrounded by a large tube through which cooled water is passed to cool and water vapor. As the water vapor pass through condenser, they lose heat and become liquid water. This distilled water is cooled in a separate container beaker. Solid
इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। एनदर मेथड जो है वो डिस्टिलेशन का मेथड है, जिसमें आप ये देख सकते हैं हम इस फनल के अंदर वाटर को बॉयल करेंगे, जो हमारे वेस्ट और जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर चले जाएंगी एंड पानी देन हम इसको एडॉप्टर के ज़रिए बीकर में डाल देंगे। ओपन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ वाटर। पीपल इन पाकिस्तान यूज़ वाटर इन होम्स, एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्रीज। जो पाकिस्तान में लोग हैं वो पानी को इस्तेमाल करते हैं घरों में, एग्रीकल्चर फसलों में एंड इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों में। इन होम्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ यूज इन आवर होम्स। वी यूज़ वाटर इन वॉशिंग, हम इसको इन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग द टीथ, फ्लशिंग द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम इसको बहुत से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग टीथ, क्लीनिंग सफाई के लिए, वॉश करने के लिए, खाना बनाने के लिए एंड पीने के लिए। इन एग्रीकल्चर प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आवर फार्मर्स यूज़ 88% ऑफ द फ्रेश वाटर फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। 88% जो वाटर फ्रेश है वो फार्मर यूज़ करते हैं वेजिटेबल एंड क्रॉप्स की, फसलों की ग्रो करने के लिए, उन्हें उगाने के लिए। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू मूव प्रोपेल्स और टर्बाइंस। टर्बाइंस इन टर्न रन जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो टर्बाइंस हैं जनरेटर में वो उसे रन करती हैं कि वो बिजली को प्रोड्यूस करें। देयर आर 5 मेजर एंड सिविल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 5 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। इन इंडस्ट्रीज यूज़ वाटर इन अ नंबर ऑफ वेज। बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्रीज use water as a raw material. Factories use it to wash metal surface. Heavy machines, complexes, oil refineries and nuclear reactors use water for cooling purposes. इंडस्ट्री में वाटर का इस तरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, people also use water for water sports such as swimming, fishing, sailing. We can enjoy water sports in water park. Conservation of water, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, सो वी मस्ट सेव इट। ज़मीन पर पानी की मिकदार बहुत कम है, सो हमें इसीलिए इसे सेव करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ और टेक वाटर इन अ टम्बलर। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ बाउल। डोंट वॉश डिशेज अंडर रनिंग वाटर। ओनली यूज़ वॉशिंग मशीन विद अ फुल लोड। इफ़ यू हैव अ लॉन, water it early in the morning or late in the afternoon. Check regularly the leaks in the water pipes and get them repaired immediately. Paper mills of oil refineries, chemical industry, heavy mechanical complexes and nuclear power plants should conserve water by reducing वाटर यूज़, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड रीयूजिंग ऑफ वाटर। इन सब तरीक़ों पर अमल करके हम पानी को महफूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके पास था कि जब आप ब्रश कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप टैप को बंद रखें, फ्रूट्स को आप एक बाउल में डाल के वॉश करें, डिशेस को भी, एंड देन आप इन तरीक़ों को यूज़ करके वाटर को सेव कर सकते हैं। ओके क्लास।